भी उड़ा के अपने साथ ले जाते हैं। You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. आपने क्या किया, ये बहुत सारी वो है, बहुत सार मतलब कुछ मीठा जमीन पर डाल दिया और कुछ ही मिनट्स में इतनी सारी एंट आ गई इसको कलेक्ट करने के लिए। As you walked softly past a sleeping dog, its ears shoot up at once. आप देखो बड़ी आराम से जा रहे हो एक डॉग के पास से जो सो रहा होता है, फिर भी उसके ईयर्स उठ जाते हैं जैसे इस वाले डॉग के उठे हैं। Why does it happen? Think and tell. ये क्यों है, आप थिंक करो और टेल करो। Animals also have different senses. जैसे हमारे पास ये 5 senses होती हैं, taste with the help of tongue, smell with the help of nose, hear with the help of ear, and see with the help of eyes, and feel with the help of skin. ये वाली सेंसेस ना एनिमल्स के पास भी होती हैं। They can see, hear, taste, smell and feel. ये वो एनिमल्स भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। Some animals can see their prey from far away. और किसी एनिमल्स को अपना शिकार बहुत दूर से भी दिख जाता है। Some can hear even the faintest sound. और किसी को तो बिल्कुल faintest sound भी सुन जाती है। Some animals can find their friend by their smell. और कोई एनिमल ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड को उनकी स्मेल से ढूंढते हैं। The animal world is full of examples of amazing senses. इस एनिमल्स का वर्ड है वो एक एग्जाम्पल है अमेजिंग सेंसेस का। Now, how did the ant recognize a friend? Ant अपने फ्रेंड को कैसे देखती है? An ant was going along on the ground. एक ants जा रही हैं एक ग्राउंड पे। It saw a group of ants coming from the other side. और एक दूसरा ग्रुप आ रहा है एंट का दूसरी साइड से। The first ant quickly came back to its hole. और ये जो दूसरी एंट होती है वो फिर जल्दी से अपने होल में चली जाती है। The ant guarding the hole recognized it and let it in. एंट को ये गार्डनिंग ये अपना होल दिखा और now try this and write. Drop some sugar, jaggery or anything sweet on the ground. Wait until the ants come there. आप क्या करो, चीनी या फिर गुड़ जमीन पर डाल दो और वेट करो कि एंट कितने देर में आते हैं। How long did it take for the ants to come? The ants take 10 minutes to come. Did one ant come first or a group of ants came together? First time only one ant come and then a group of ants come. What did the ant do with the food? The ant do with the food. They eat the food and collect some food. Where do they go from there? The ants go in the hole. Do they move in a line? Yes, they move in a line. Now carefully, without harming the ants, block their path for a while with a pencil. अब बिना ants को हार्म किए उनका ये जो पाथ है उसको रोक दो पेंसिल से बिना उनको हार्म किए। Now observe how do the ants move. अब देखो कि भाई ये ants कैसे मूव कर रही है। तो ये देखो रुकना कैसे है। अब जैसे ये रही यहाँ पे ये 8 ants है। और अब ये 4 ants ये रही 1 2 3 and 4 हमने यहाँ पे रख दी पेंसिल। ये पीछे वाली ये वाली ants ना क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल
1 डेरी, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। और फिर उस स्मेल को ढूंढेगी कहाँ पे है वो वाली स्मेल। Many years ago, scientists did many experiments like this. बहुत साल पहले साइंटिस्ट ने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जैसे कि ये वाला। He found out that as the ant move, उन्होंने देखा था कि भाई ये ant कैसे मूव करती है। They leave a smell on the ground, वो ग्राउंड पे स्मेल छोड़ती है। The other ants follow the smell to find the way, और ये जो और एंड्स होती हैं वो उस स्मेल को फॉलो करती है अपना वे ढूंढने के लिए। Now can you guess why the ants behave like when you blocked their path? उन्होंने ऐसा बिहेव क्यों किया था जब उनका आपने पाथ रोक दिया था? Some male insects can recognize their females by their smell, और कुछ ये जो मेल इंसेक्ट होती है ना, वो अपनी ये जो फीमेल इंसेक्ट होती है उनको रिकॉग्नाइज करके ढूंढ लेती है। Have you ever been troubled by mosquitoes? Just think how do they know where you are? देखो आप बिल्कुल मॉस्किटोज के बीच में फंसे हुए हो, उनको कैसे पता चलता है कि आप कहाँ हो? Mosquitoes can find you by the smell of your body. ये जो मॉस्किटो है वो मेरे को आपकी बॉडी की स्मेल से ढूंढ लेते हैं। They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. वो हमें हमारी बॉडी की स्मेल और ये जो हमारी फीट पे मिट्टी लग जाती है उसे ढूंढ लेते हैं। ओके, ओह हियर इज इंसेक्ट टेलिंग समथिंग। I am a silkworm, मैं सिल्कवर्म हूँ। I can find my female worm from many kilometers away by her smell. मैं अपनी फीमेल वर्म को ढूंढ लेता हूँ बहुत दूर से, बहुत किलोमीटर देखे सूंघ के। Have you seen a dog sniffing here and there? क्या आपने कभी देखा है ये जो डॉग है वो कहीं कहीं सूंघ रहा होता है? What do you think it is trying to smell? आपको क्या लगता है वो क्या ट्राई कर रहा होता है स्मेल की? Dog mark out their own area on the road. ये जो डॉग हैं वो अपनी खुद की एरिया रोड पे मार्क करते हैं। They can make out if other dog has come into their area by the smell of its urine or potty. देखो ये जो, और अगर उनकी एरिया में कोई दूसरा डॉग आ जाता है तो वो उनकी यूरिन से या फिर पॉटी से पता लगा लेते हैं। राइट। In what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs? ये जो ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या यूज करते हैं इस डॉग्स के स्पेशल सेंस का? When do you find your sense of smell helpful to you? क्या आपने देखा है कि आपकी जो स्मेल की सेंस होती है क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है? List some example like to know by its smell that food has gone bad or the something is burning. Okay, name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them. उन एनिमल्स के नेम लिखो जिनको आप बिना देखे ही पहचान लेते हो। Write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you do not like. इनमें से 5 कुछ ऐसी थिंग्स लिखो जो उनसे आपको अच्छी लगती है और 5 ऐसे जो आपको नहीं लगते। I like the smell of flowers, perfume, think. I do not like the smell of garbage, unwashed clothes, etc. Do you and your friends have similar answer? Now discuss. Do the clothes of any of your family members smell woozy? क्या आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स के कपड़ों में से स्मेल आती है? Did you ever come across any smell in a crowded place such as a fair, bus, train, etc. क्या आप कभी ऐसे क्राउडेड प्लेस में से गए हो जैसे कि फेयर में, बस, ट्रेन और बहुत चीजें? Why so? ये ऐसा क्यों हुआ? Today Rajni had to go out for some important work. आज ना ये
रजनी है उसको कहीं बाहर जाने काम से बहुत इम्पोर्टेंट है. She had to leave her 6-month-old son दीपक with her sister सुशीला. वो अपने छोटे से बेटे जो 6 मंथ का है दीपक उसको अपनी सिस्टर के घर छोड़ गई सुशीला के पास. सुशीला also has a baby of the same age. सुशीला के पास भी बेबी है उसी एज का. It was funny that both the babies did potty at the same time. और ये बहुत फनी है कि भाई दोनों बच्चों ने एक ही टाइम पे पोटी कर दी. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, उसने अपनी डॉटर का तो बस हैप्पी से क्लीन कर दिया, पर जब वो अपनी सिस्टर के सन दीपक का करने लगी, she covered her nose with her दुपट्टा and scarf या फिर स्कार्फ. वो उसने अपनी नोज दुपट्टा से या फिर स्कार्फ से कवर की. Think and discuss. सुशीला covered her nose when she cleaned Deepak nappy. जब सुशीला ने अपनी जब कवर की थी जब वो दीपक की नापी क्लीन कर ली थी, बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर. पर उस टाइम जब वो अपनी डॉटर की कर रही थी. व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? तुम्हें क्या लगता है वो इसने ऐसा क्यों किया होगा? हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? आपको कैसा लगता है जब आप उसके सामने से गुजर के जाते हो जहाँ पे गार्बेज का भंडार लगा है. Think of the children who spend the whole day picking these things from such garbage. आप उस चिल्ड्रन के बारे में सोचो जो पूरा दिन उसमें से चीजें उठाता रहता है. Is the smell good or bad for everyone in the same way? उसकी स्मेल गुड है या फिर बैड है सबके लिए? और does it depend on how each one feels about? और या फिर ये उस पर डिपेंड करता है कि भाई औरों को कैसा लगता है. Now let's see. Write the name of a bird which has eyes in the front of its head like in humans. उन birds के नाम लिखो जिनके eyes ये हमारे तरह ही है head के सामने में, हाँ head के सामने. Write the names of some birds which have eyes on either side of the head. उन birds के नाम लिखो जिनकी eyes एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. What is the size of their eyes as compared to the size of their head? उनके आइज का क्या साइज है अगर उनके हेड से कंपेयर करें तो? मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड. कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जिनकी ये जो आइज हैं वो आइदर साइड होती है हेड के. देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम. उनकी जो आइज होती हैं वो 2 चीज़ों को देख सकती है टाइम पे. व्हेन दे लुक स्ट्रेट है जो वो बिल्कुल सीधा देखती है. Both their eyes focus on the same object. और फिर वो दोनों वो eyes एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है. You must have seen birds moving their neck very often. तुमने देखा होगा कि भाई ये जो वो birds हैं अपना neck घुमाती है. Do you know why? क्या तुम्हें पता है क्यों? In most of the birds eyes are fixed and cannot move. कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जिनकी आइज बिल्कुल फिक्स हो रखी होती हैं और जो मूव नहीं हो पाती. सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड. तो इन बर्ड्स को अपना सर हिलाना पड़ता है कहीं देखने के लिए. लुक विद वन और बोथ आइज. एक आँख से देखना और दोनों से. क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड. क्लोज योर आई लाइक दिस एंड कवर. You also cover with hand like this. Tell your friend to stand to your right. अपने फ्रेंड को बोलो कि आपके राइट में खड़ा होए. At some distance and ask him to do some action, wave hand, shake hand, etc. और उसको बोलो कि वो कुछ एक्शन करे जैसे कि हैंड को वेव करे, शेक करे, shake head like this. Could you see your friend action? क्या तुम अपने फ्रेंड के एक्शन देख पा रहे हो? Without moving your neck. बिना तुम अपने आँख को घुमाए. नहीं ऐसे नहीं घुमाना. Now try to look at your friend action with both
both your eyes open but without moving your neck. जैसे आपने ऐसा कर रखी है, जब आप देख पाते हो और फिर क्या करो, गर्दन तो मूव नहीं करनी है पर दोनों आईज खोल के देख पा रहे हो. What was the difference on looking with one or both eyes? उनमें क्या डिफरेंस है, एक आँख से देखना और दोनों से देखना. Now toss a small ball or a coin and try to catch. अब कोई छोटी सी बॉल या फिर कॉइन को घुमाओ, टॉस करो. Try this with both your eyes open. और ये जब करो कि आपकी दोनों आईज खुली हुई होनी चाहिए. Then close one eye and try to catch it. और फिर अपनी आईज क्लोज करो like this. फिर उसको कैच करने के लिए ट्राई करो. When was the easier to catch? क्या वो आपके लिए इजी है कैच करने के लिए? Imagine how it would be to have your eyes in place of your ears. आप सोचो कि भाई ये जो आपके यहाँ पे ईयर्स हैं, यहाँ पे आईज होती तो क्या होता. What would you be able to do then? क्या फिर आप यहाँ क्या कर पाते? Which you cannot do now. जो कि आप नहीं अब नहीं कर सकते. Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि काइट्स, ईगल्स और वल्चर्स 4 टाइम्स ज़्यादा देख सकते हैं जैसे कि हम देखते हैं. These birds can see things from a distance of 8 meters but we can see from a distance of 2 meters. ये जो बर्ड्स हैं ये उस चीज़ को 8 मीटर के डिस्टेंस में से देख लेती है जो हम 2 मीटर के में से देख सकते हैं. Now can you guess from the distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? अब आप गेस करो कि ये जो ईगल है वो एक स्काई में से रोटी को ग्राउंड पे देख सकता है. Do animals see colors? Animals cannot see as many colors as we can. ये जो एनिमल्स होते हैं वो इतने कलर्स नहीं देख पाते जैसे हम देख पाते हैं. See how these pictures will be seen by some animals. ये जो पिक्चर्स हैं कुछ एनिमलों द्वारा देखी गई है. This is human. तो मेरे को ये बिल्कुल जैसा है वैसा ही दिखेगा. A bird, it's look like this. Dog, this. And what is this? It's like a lizard. Wait. It's look like a lizard, and lizard look like this. Black and white. It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. ये बिलीव करने की बात है, जो एनिमल्स दिन में उठे होते हैं उनको कुछ कुछ कलर्स दिखते हैं. Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. और जो एनिमल्स होते हैं वो रात में जागे होते हैं, वो सिर्फ ब्लैक चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट कलर में देख पाते हैं. Now sharp ears. In class 4th you read that we cannot easily see birds' ears. आपने क्लास 4th में पढ़ा था कि भाई हम ना ये बर्ड्स के ईयर्स नहीं इजीली देख नहीं पाते. Their ears are small hole covered with feather. उन बर्ड्स के ईयर्स बिल्कुल एक स्मॉल होल की तरह होते हैं और जो पंखों के बीच में कवर हो रखा होता है लाइक दिस. ये स्मॉल होल होते हैं बस. Now write the name of 10 animals whose ears can be seen. कोई 10 एनिमल्स के नेम लिखो जिनके ईयर्स आपको दिखते हैं. The name of some animals whose ears are bigger than our ears. और कुछ ऐसे एनिमल जिनके ईयर्स बिगर है हमारी ईयर से, लाइक एलिफेंट. Now think, is there some link between the size of animal ear and their hearing? क्या उसके बीच में कोई लिंक है ये हम एनिमल्स के साइज और उनकी हियरिंग में? Now try this. For this activity, find a quiet place in your school. इस एक्टिविटी के लिए अपने स्कूल में कोई भी बस शांत सा कमरा ढूंढो या प्लेस ढूंढो. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask
him to say something softly. अपने फ्रेंड को कहो कि थोड़ी सी दूर वो खड़ा और उसको बोलो कि भाई कुछ सॉफ्टली आराम से बोले, लाइक दिस, आराम से बोले. The rest of you should listen carefully. और आप जो बाकी हो उनको सुनना है. Then all of you put your hand behind your ears. अब आप सभी अपने ears अपने hand के behind कर लो, like this. As shown in the picture, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है. Let's the same child say something again as softly as before. ये फिर दूसरा बच्चा भी ऐसे ही softly बोलेगा जैसे पहले बोला था. In which case was the sound sharper? Ask your friends too. अपने friends को भी बोलो. Put your hands over your ears and say something. Can you hear your own voice? आप अपने ऐसे ही यहाँ पे ऐसे हाथ ढालो और क्या आप अपनी और कुछ बोलो. क्या आप खुद की आवाज सुन पाते हो? Sit near a desk. एक डेस्क के पास बैठो. Tap the desk once with your hand. अपने डेस्क उस डेस्क को टैप करो नीचे से अपने हैंड से. Listen carefully. उसको अच्छे ध्यान से सुनो. Now put your ears on the desk as shown in the picture. अपना सर ऐसे ही उस पर ढाल दो जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है. Tap on the desk once again with your hand and listen again. फिर उस डेस्क को नीचे से फिर से टैप करो और उसको फिर से सुनो. Was there any difference in the sound of the tap? क्या उस टैप की साउंड में कुछ डिफरेंस है? Now this is no snakes here. How snakes here? क्या आपको पता है स्नेक्स कैसे सुनते हैं? They do not have external ears. उनके पास external ears नहीं होते हैं, which you can see, जो आप देख सकते हो. They only feel the vibration on the ground. उनको सिर्फ ग्राउंड की विब्रेशन पता चलती है. Sound send messages. ये जो साउंड है वो मैसेजेस सेंड करती है. High up on a tree, a langur warns other of dangers like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. ये जो लंगूर है उसके लिए वो स्पेशल वार्निंग कॉल बनाएगा कि मैं डेंजर में हूँ. Birds also have alarm calls to warn about the danger. और ये जो बर्ड्स के पास भी अलार्म कॉल होती है वार्न करने के लिए डेंजर के लिए. Some birds even have different sounds for different kinds of dangers. और हर एक बर्ड के पास डिफरेंट साउंड होती है हर एक टाइप के डेंजर के लिए. For example, there is a different warning call of the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. जैसे कि भाई enemy sky से आ रहा है उसकी अलग कॉल है. enemy ground से आ रहा है, दुश्मन ग्राउंड से आ रहा है, उसकी अलग कॉल है. Fishes give alarm call by electric signals. ये जो fishes हैं वो अलार्म कॉल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की हेल्प से देती है, बिजली के झटके. Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि earthquake या फिर storm आ रहा है. People who live in forest and can observe such behavior of animal come to know of the danger. जो एनिमल्स ये जो आदमी जंगलों में रह रहे होते हैं वो कभी कभी उनका बिहेवियर एनिमल का बिहेवियर उन्हें पता चल जाता है. In December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed the animals behaving in a different manner. जब ये दिसंबर 2004 में ना एक ट्राइब्स फॉरेस्ट में रहती थी अंडमान आइलैंड्स पे, फिर वो एनिमल के
उनके एनिमल की मैनर समझ रहे थे। दे गेस्ड सम डेंजर, कुछ डेंजर गेस कर रहे थे। सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, तो वो वहाँ से कोई एक सेफर पार्ट में चले गए आइलैंड के। सो सून आफ्टर द आइलैंड वर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वर सेव्ड। अब कुछ ही जल्दी ही वो आइलैंड है सुनामी के हिट में आ गया, पर वो पीपल थे बच गए। डॉल्फिन्स आल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। डॉल्फिन्स की खुद एक साउंड होती है किसी को मैसेज देने के लिए। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। साइंटिस्ट ने बिलीव किया है कि भाई हर एक एनिमल के अलग से खुद की साउंड होती है। राइट, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? क्या तुम किसी एनिमल की साउंड गेस कर सकते हो? डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वंस? क्या कोई एनिमल्स ऐसे हैं जो आपकी भाषा समझ जाते हैं? वो कौन से हैं? से इट विद साउंड, इनको साउंड्स के साथ बोलो। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेज। बर्ड्स और ये डॉल्फिन्स की तरह आप खुद की एक साउंड बना सकते हो किसी को मैसेज देने के लिए। रिमेंबर, यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विद ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स। आप रिमेंबर रखना, मतलब याद रखना, अपने फ्रेंड से बातें करते टाइम सिर्फ साउंड्स बनानी है, लाइक कुछ वाह वाह वाह, और आप बिना कोई वर्ड यूज करे। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल? जैसे कि भाई आप कोई अलार्म कॉल दे रहे। फॉर एग्जांपल व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम। फॉर एग्जांपल कि भाई टीचर आ रही है क्लास में। स्लीपिंग, वेकिंग। Some animals go into a long deep sleep in a certain seasons. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एक बहुत गहरी स्लीप ले लेते हैं सीजन्स में। Then they are not seen for many months, और वो बहुत सारे महीनों के लिए नहीं देखते हैं। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? आपने कभी नोटिस किया है कि भाई ये जो सर्दियों का मौसम होता है, जब आपके घर में एक भी छिपकली नहीं दिखती, where do you think they have gone? आपको क्या लगता है फिर वो कहाँ चली जाती हैं? Sloth. It's look like a bear but is not. ये है जो बियर की तरह दिखता है पर ये बियर नहीं है। It is a sloth. ये स्लोथ है। It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. ये अपना टाइम 17 घंटे सोने में लगाते हैं ट्री की ब्रांचेस पे। The sloth eats the leaf of same tree on which it lives. और ये जो स्लोथ होते हैं वो उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं जिस पे वो रहते हैं। It hardly needs anything else. जब वहाँ कुछ नहीं बचता। When it have eaten enough leaves from that tree, जब वो बहुत सारी लीव्स खा लेते हैं उस ट्री पे, इट्स मूव टू द नियर ट्री, वो अपने पास वाले पेड़ के पास चले जाते हैं। स्लोथ्स लिव फॉर अबाउट 40 years and it in that time they moved around only 8 years. ये जो स्लोथ हैं वो 40 years जीते हैं और उनमें से ये बस 8 पेड़ बदलते हैं। Once a week it comes down from the tree to relieve itself. वीक में एक बार वो नीचे आता है पेड़ पे से कि खुद को रिलीव करने के लिए। 24 hours, time of which sloth is awake. टाइम जिस टाइम स्लोथ उठा रहता है 6 hours, 18 hours वो सोता है, 12 hours ये 24 hours, 12 hours, 6 hours, 18 hours. Sleeping time for sloth. If you were to show a sloth daily routine, sleeping and waking in a 24 clock, this is that the clock would look like. अगर आप स्लोथ का डेली रूटीन जानना चाहोगे स्लीपिंग और वेकिंग का, वो तो इस 24 आवर्स क्लॉक में देख लो। How will you show the
क्लोक फॉर हाउस लिजर्ड्स इन विंटर्स। आपको कैसा लगता है ये क्लोक लिजर्ड के हाउस का विंटर में? गिवन हियर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स का सोने का टाइम दिया गया है। राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे द एनिमल स्लीप। और ये लिखो कि वही ये पूरा दिन में कितना सोते हैं। सो फर्स्ट इज काउ। काउ स्लीप 2 hours. Is python 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 hours python. 2 hours cow. 1 hour giraffe. 1 2 3 4 5 and 6 hours cat. What do you think? Which इन पिक्चरों में से कौन सा एनिमल्स आपको ऐसा लगता है कि वही बहुत ज़्यादा सोता है? आई थिंक इट्स पायथन। और कौन सा एनिमल सबसे कम सोता है? जिराफ। When do you see different animals? Do you have any question about them? Make a list of 10 such questions. जब आप इन एनिमल्स को देखते हो कि आपके पास कोई क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाओ। This is a picture of tiger. A tiger can see 6 times better at night than most of us. ये जो टाइगर है वो 6 टाइम सही देख पाता है, हम में से कुछ ही लोग ऐसे देख पाते हैं। First I drink some water. The tiger whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibration in the air. ये जो टाइगर की wrinkles होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो सेंस कर पाते हैं उनकी वो एयर की मूवमेंट को। They help the tiger move in the dark and find its prey. ये टाइगर की हेल्प करती है रात को भी क्या उनके प्रे ढूंढने में, शिकार ढूंढने में। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. ये जो टाइगर होता है उसकी ये जो हियरिंग है वो इतनी शार्प होती है, वो एक पति के गिरने की भी आवाज़ सुन लेते हैं। और ये जो रस्लिंग होती है ट्रीज वगैरह में, tigers make different sounds from different purposes, like when it is angry or to call out to a tigers. ये जो टाइगर हैं वो डिफरेंट कॉल बनाते हैं साउंड्स की, जैसे जब वो बहुत गुस्सा होते हैं या अगर और टाइगर्स को कॉल करना होता है। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नर्ल। ये जो है वो रोर भी कर सकते हैं और स्नर्ल भी। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। इनकी जो रोर है वो बहुत 3 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया। हर एक टाइगर की खुद की एरिया होती है, विच में कवर सर्वाइवल किलोमीटर, जो कि बहुत सारे किलोमीटर सर्वाइवल करती है। टाइगर मार्क्स देयर एरिया विद देयर यूरिन। जो टाइगर्स हैं ये अपनी एरिया अपनी यूरिन से मार्क करते हैं। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। और टाइगर उनके यूरिन की स्मेल से पता कर लेते हैं कि भाई उनके एरिया में कोई और टाइगर तो नहीं आ गया। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर एरिया। ये और टाइगर हैं वो नहीं जा सकते दूसरे टाइगर्स के एरिया में। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। टाइगर ना है जो वो बहुत अलर्ट एनिमल है। एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। और ये बात अब टाइगर डेंजर में है, खतरे में। What do you think are some of the dangers to tigers in the jungle? आपको क्या लगता है टाइगर्स को जंगल में डेंजर क्यों है? Can human beings also by the threat to animals how? क्या जो ह्यूमन है वो एनिमल्स के लिए थ्रेट है और क्यों? Do you know that today many animals are killed and their parts are sold? क्या आपको पता है कि आज
बहुत सारे एनिमल्स मार दिए गए हैं और उनके जो पार्ट्स हैं वो बेच दिए गए हैं। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स। ये जो एलिफेंट्स है वो उनकी सूंड के लिए, राइनोसोरस उनकी हॉर्न के लिए, फॉर इट्स हॉर्न, ये जो ऐसी शेप की होती है हॉर्न। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन। ये जो टाइगर्स है, क्रोकोडाइल्स है और स्नेक्स उनके स्किन के लिए। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल स्किन फ्रॉम इट्स मस्क। और मस्क डियर उसके लिए कि भाई उनके मस्क से लिटिल स्किन्स बनाने के लिए। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर एंड पॉचर्स। जो एनिमल्स को किल करता है उनको हंटर या फिर पोचर कहते हैं। The number of tiger and many other animals in our country is reducing. अभी जो टाइगर्स के नंबर हैं और कोई से भी एनिमल के नंबर हैं वो बहुत कम हो रहे जा रहे हैं कंट्री में। There is a danger that some of them will soon disappear. और ये एक डेंजर है कि भाई जल्दी ही कोई डिसअपियर हो जाते हैं। To protect the animals, our government has made some forests as protected areas. इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट बनवाए हैं जो कि प्रोटेक्टेड पूरे। सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड गहना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इनमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में और गहना में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। In these areas nobody can hunt animals or destroy the jungle. इन एरिया में कोई भी एनिमल्स को हंट नहीं कर सकता और जंगल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। Now find out where are other such national parks in India. यहाँ पे और भी नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। Collect information on this and write a report. इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और एक रिपोर्ट लिखो। What we have learned. मैं आपने क्या लर्न किया? Have you noticed that some singers put their hand on their ear when they sing? आपने कभी देखा है कि भाई ये जो सिंगर होते हैं वो अपने फिंगर डाल लेते हैं ईयर में जब वो गाते हैं? Why do you think they may be doing this? आपको क्या लगता है वो ये ऐसा क्यों करते होंगे? Give example of animals that may have a very strong sense of sight, hearing or smell. कुछ एनिमल्स के नाम बताओ जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है सुनने की और देखने की। Let's make a paper dog. This is an activity